Hello everyone. So this is the third lecture in eukaryotic transcription, and there has been a delay in uploading this lecture, and I'm really sorry for that. Due to some personal reasons, I could not prepare and upload the lecture on time. And let's proceed with this. So till now in eukaryotic transcription, I've discussed about RNA polymerases, and in the last lecture I discussed about I mainly focused on core promoter and assembly phase in eukaryotic transcription. So I told you that in eukaryotic transcription happens in four phases: assembly phase, initiation phase, elongation phase, and termination phase. And the core promoter जो है, that is basically core promoter is a sequence. It is the shortest sequence at which RNA polymerase 2 can uh, RNA polymerases can bind and initiate transcription. So in case of eukaryotes, um RNA polymerase cannot bind and initiate transcription uh, independently, or they are not capable of binding and initiating transcription. They need help of general transcription factors. So there is an assembly phase where general transcription factors they assemble at core promoter and they help RNA polymerase to bind uh, at the core promoter and initiate transcription process. So let's proceed further. So these are the steps in eukaryotic transcription. I told you about assembly phase, initiation phase, elongation phase, and termination phase. But the first step in eukaryotic transcription is opening of chromatin, because the DNA is extraordinarily long and it is very densely packed within the structure called chromatin. So the first important thing is opening of chromatin structures, because you know how long our DNA is. So our genome is extraordinarily long, because a diploid cell has approximately 6 into 10 raised to power 9 base pairs. तो जो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, जैसे स्पर्म सेल्स हैं और ओवा सेल्स हैं, ठीक है, स्पर्म सेल और ओवा सेल दे आर हेप्लॉइड सेल, तो उनमें जो अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर होता है, ठीक है, जीनोम साइज जो है वो 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स का है. और इन डिप्लॉइड सेल्स, बाकी जितने सेल्स सारे डिप्लॉइड सेल्स हैं, और उनमें जो जीनोम का जो साइज है दैट इज 6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली. तो एक वन बेस पेयर की जो लेंथ होती है दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स लॉन्ग. और अगर आप कैलकुलेट करो इनटू मीटर्स, तो ये जो 6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स हैं, दे कम टू 2 मीटर्स. मतलब इतने जो बेस पेयर्स इनको अगर खोल दिया जाए, इनको अगर एक सीक्वेंस में रख दिया जाए, तो 2 मीटर लॉन्ग सीक्वेंस बनता है. मतलब हमारा जो जीनोम है उसका जो अगर मीटर्स में लेंथ नापी जाए तो 2 मीटर्स है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लॉन्ग सीक्वेंस है, ठीक है. तो इतना लंबा जो डीएनए है दैट इज वेरी डेंसली पैक्ड विद इन द न्यूक्लियस. ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से पैकिंग होती है. तो जनरली आपको पता ही होगा, तो ये जो डबल हेलिक्स है डीएनए का, it is packed into structures called nucleosomes. तो nucleosomes में क्या है, DNA is wound around histones. हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं. तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उनके अराउंड ये डीएनए वाउंड करता है, तो इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है. डीएनए वाउंड ऑन द न्यूक्लियोसोम. इसमें क्या है कि ये जो 2 राउंड्स ऑफ डीएनए हैं, दिस इज 1 राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 राउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 राउंड्स है. ये जो 2 राउंड्स इज मतलब फर्स्ट राउंड एंड दिस सेकंड राउंड.
ये 2 राउंड्स ऑफ डीएनए है दैट इज बेसिकली वुंड अराउंड ऑक्टामर, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का एक ऑक्टामर होता है, उसके अराउंड ये वुंड करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, और ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं दे आर बेसिकली पैक्ड टुगेदर इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म इनटू क्रोमेटिन फाइबर। ये आपस में पैकिंग होती है इनकी, और ये क्रोमेटिन फाइबर बनाती है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये जो क्रोमेटिन है दे आर देन अरेंज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। इस तरह से इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है, ठीक है। तो पहला जो काम है, फर्स्ट थिंग इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज ओपनिंग ऑफ क्रोमेटिन मॉलिक्यूल और जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, ताकि डीएनए जो एक्सपोज हो सके, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन की जो ओपनिंग है, इसके लिए क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस और हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। दूसरा जो है that is assembly of general transcription factors along with RNA polymerase on promoter forming complete transcription initiation complex, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो एक बार जब ये कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर इनिशिएशन शुरू होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो इनिशिएशन होती है वो प्रॉपर इनिशिएशन एकदम से नहीं हो पाती है, यहाँ पर भी एबॉर्टिव इनिशिएशन होती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी था, वहां पे स्क्रंचिंग मैकेनिज्म था और उसमें भी एबॉर्टिव इनिशिएशन थी। तो यहाँ पर भी एबॉर्टिव इनिशिएशन होती है, बिकॉज इतना बड़ा ये जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है वो इतना बड़ा होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को उसको एस्केप करना, प्रमोटर को एस्केप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स एबॉर्टिव इनिशिएशन हैपेंस, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो दैट एंटर्स इनटू इलोंगेशन फेज, ठीक है। और जो इलोंगेशन फेज है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इट इज कपल्ड विद आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो आरएनए फॉर्म होता है दैट अंडरगोज प्रोसेसिंग, वो प्री आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इमेच्योर आरएनए फॉर्म होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और फिर जो मेच्योर आरएनए मॉलिक्यूल होता है दैट इज जो मेच्योर एमआरएनए होगा दैट इज ट्रांसलोकेटेड टू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वहां पे फिर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर टर्मिनेशन फेज आता है, ठीक है। तो ये सारे फेजेस हैं, अब इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले ओपनिंग ऑफ क्रोमेटिन को एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस और हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो है वो दे ओपन अप द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स। इसमें एक मॉडल है, उसे देख लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज द मॉडल which shows how remodeling complexes they basically open up the chromatin structures. तो आप ये देख सकते हो, ये chromatin fiber है which is made up of nucleosomes, these many nucleosomes, और इसमें क्या है कि जो ये chromatin remodeling complexes हैं they are ATP dependent. तो for opening of the chromatin structure they will hydrolyze the ATP molecules, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होगा और उससे एनर्जी मिलेगी, और ये जो रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस है ये जो ऑक्टामर्स हैं बेसिकली, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर ऑक्टामर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनके अराउंड जो है डीएनए रैप रहता है। तो बेसिकली इसको अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस है ये इन ऑक्टामर्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, by using energy from ATP hydrolysis. तो इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, और इससे जो डीएनए है ये इतना लंबा जो डीएनए, द स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज बेसिकली एक्सपोज्ड, और अब ये जो डीएनए स्ट्रेच है इस पे जो इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, तो जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है और आरएनए पॉलीमरेज है वो आके यहाँ पे बाइंड करेंगे और कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन असेंबली फॉर्म करेंगे,
So this is one model which shows how the remodeling complexes, the chromatin remodeling complexes work. अच्छा, इसी में हिस्टोन्स की मॉडिफिकेशन भी होती है क्योंकि जो ऑक्टामर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ हिस्टोन. सो इनको डिस्प्लेस करने के लिए हिस्टोन्स की मॉडिफिकेशन, हिस्टोन्स की मिथाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन होती है. ठीक है, इससे भी ये डिस्प्लेस होते हैं. ओके, तो ये स्कीम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको बताया था. This is a scheme for showing the assembly phase of transcription of eukaryotic gene by RNA polymerase 2. इसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रमोटर, कोर प्रमोटर है. ठीक है, कोर प्रमोटर में क्या है, टाटा बॉक्स है, एक BRE एलिमेंट होता है जो इसमें दिखाया नहीं है. So there is a BRE element, then there is टाटा बॉक्स and there is INR sequence जो कि which has the transcription start site. ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंसेस होती हैं कोर प्रमोटर की. तो इनमें अलग अलग ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F along with RNA polymerase 2, then ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H. ये सारे आके असेंबल होते हैं. ठीक है, एट द कोर प्रमोटर विच हैज अ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑल्सो. यहाँ पे अरेंज होते हैं फॉर्मिंग कंप्लीट इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन असेंबली. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो इनिशिएशन शुरू होती है. तो ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. ये जो स्कीम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये जो कब कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करेगा किस स्टेज पे, ये साइंटिस्ट ने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करके निकाला है. लेकिन इन विवो ये डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, और जीन टू जीन भी ये वेरी कर सकता है. ओके, सो दिस इज वन थिंग, यानी कि कब कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके किस साइड पे जाके बाइंड करेगा, ये जो ऑर्डर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, अरेंजमेंट का, ये डिफर कर सकता है इन विवो कंडीशंस में, और ऑल्सो जीन टू जीन में भी ये वेरी कर सकता है. ठीक है, अलग अलग जीन्स में अलग अलग ऑर्डर हो सकता है अरेंजमेंट का. उसके अलावा सेकेंड चीज ये है कि ये जो जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, दीज आर हाईली कंजर्व्ड. सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हाईली कंजर्व्ड हैं यूकेरियोट्स में. ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर कुछ ह्यूमन सेल्स के अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को अगर सिंपल यीस्ट के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो भी ट्रांसक्रिप्शन होगी. ठीक है, सो दिस शोज कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो हाईली कंजर्व्ड है. यानी कि अगर आप ह्यूमन सेल्स आप ले रहे हो, ह्यूमन सेल्स के अंदर आप ट्रांसक्रिप्शन कराना चाह रहे हो, तो जो ह्यूमन कुछ सम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बहुत ज्यादा कंजर्व्ड है, अगर उनको आप निकाल दो, रिमूव कर दो, और उसकी जगह आप यीस्ट के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो डाल दो, तो भी ट्रांसक्रिप्शन होगी. इससे पता चलता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं यूकेरियोट्स में, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे असेंबली फेज में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये सारे हाईली कंजर्व्ड हैं इन यूकेरियोट्स. ठीक है, सो तो जैसे कि आपको पता है कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है इट बाइंड्स टू द टाटा बॉक्स. तो टाटा बॉक्स जो है 8 बेस पेयर लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 8 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जब टाटा बॉक्स को बाइंड करता है, तो इसकी जो बाइंडिंग होती है, इससे इस टाटा बॉक्स के अंदर का जो डीएनए होता है उसमें एक डिस्टॉर्शन होता है. ठीक है, तो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ये टाटा बॉक्स का जो माइनर ग्रूव होता है. ठीक है, डीएनए हेलिक्स में एक माइनर ग्रूव होता है और एक मेजर ग्रूव होता है. ठीक है, तो जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो
टाटा बॉक्स के माइनर ग्रुप में बाइंड करता है, और इसकी जो बाइंडिंग होती है उससे इसके अंदर का जो डीएनए है उसमें एक बेंड होता है, ठीक है, एक डिस्टॉर्शन होता है, एक डिफॉर्मेशन होता है, जो कि बेंड होता है। यहाँ पे जो डीएनए होता है वो बेंड हो जाता है टू 80 डिग्री, 80 डिग्री तक ये जो डीएनए है इसके अंदर का ये बेंड हो जाता है, ठीक है। ये जो डिस्टॉर्शन होता है इसमें, दिस डिस्टॉर्शन इज बेसिकली इट हैज अ फंक्शनल इम्प्लीकेशन, ठीक है, इसका एक फंक्शन होता है, इट हैज अ फंक्शनल इम्प्लीकेशन। तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है, दो रीजन है, तो ये इट इज थॉट दैट ये जो डिस्टॉर्शन होता है ये एक तरह से एक लैंडमार्क का काम करता है, ठीक है। जब यहाँ पे जब टीवी बाइंड करेगा और इसमें डिस्टॉर्शन होगा, एक बेंड हो जाएगा 80 डिग्री का, उससे क्या होगा कि क्योंकि बहुत जो हमारा जीनोम है वो बहुत बड़ा है, इट्स वेरी लार्ज, तो इतने लार्ज जीनोम में ये जो बेंड है ये एक लैंडमार्क का काम करेगा, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि ओके ये यहाँ पे ये एक्टिव प्रमोटर है, और जो दूसरे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आए और आके यहाँ पे बाइंड कर जाए, तो एक लैंडमार्क का काम करेगा पहला। दूसरा ये कि इसमें जो डिस्टॉर्शन होती है उसकी वजह से इसमें जो दूसरे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आके आराम से बाइंड कर सकते हैं नियर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। तो दूसरे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग को भी ये के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है बेंड डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो इसको हम इस फिगर के थ्रू ठीक से देख सकते हैं, जैसे कि ये फिगर है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला फिगर है इसमें यू कैन सी ये जो टीबीपी है कहाँ पे बाइंड कर रहा है, ये डीएनए डबल हेलिक्स के जो माइनर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है, इस माइनर ग्रुप पे ये बाइंड कर रहा है, और इसकी बाइंडिंग की वजह से ये जो डीएनए है इसमें 80 डिग्री का बेंड हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री का बेंड हो रहा है, और इस बेंड की वजह से ये जो दो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, टू साइड्स ऑफ द टाटा बॉक्स के जो ये दो साइड्स है, ये और ये एक दूसरे के एक तरह से क्लोज आ रहे हैं, और उनके क्लोज आने की वजह से इसमें आप यू कैन सी के जो डाटा फैक्टर 2b है ये यहाँ पे आके बाइंड करना है, ठीक है। नीचे वाला फिगर ये डीएनए है, इसमें ये टीबीबी तो यहाँ बाइंड किया माइनर ग्रुप में, इसके बाइंड करने से यहाँ पे एक बैंड आ रहा है, ठीक है। और ये टाटा फैक्टर 2b है, ये जिसमें आपको बताया था ना कि यहाँ पे ये टाटा बॉक्स है, और टाटा बॉक्स से पहले ही बीआरई एलिमेंट होता है, ठीक है। उस बीआरई एलिमेंट पे ये टाटा फैक्टर 2b जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, बाइंड करता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंड करता है। टाटा बॉक्स से जो पहले वाला जो डाउनस्ट्रीम आईएनआर से थोड़ा सा पहले सीक्वेंस है उसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाइंड करता है टाटा फैक्टर 2b। सो अगर आप ये फिगर देखो, तो ये टाटा फैक्टर 2b है, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा लंबा दिखाया हुआ है फैक्टर, ये यहाँ बीआर जहाँ पे बीआरई एलिमेंट है यहाँ इसको बाइंड कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ तक ये जो इनिशिएशन जो स्टार्ट है इनिशिएशन सीक्वेंस होती है यहाँ पे जो आईएनआर है यहाँ तक इसको बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब डाटा बॉक्स पे जब ये टीबीपी बाइंड करता है तो उससे एक बैंड आता है, बैंड की वजह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b है ये इजीली आके यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे नीचे टीबीपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो बेसिकली ये जो बैंड है डिस्टॉर्शन है, इट हैज अ फंक्शनल इम्प्लीकेशन। पहला तो ये कि ये जो बैंड है ये एज अ लैंडमार्क की तरह सर्व करता है, फिजिकल लैंडमार्क की तरह, ठीक है, ताकि यहाँ पे
जो दूसरे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको पता चले कि ओके ये एक्टिव प्रमोटर है, हम यहाँ पे आके बाइंड करना है। और ये जो बाइंड है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जो बाइंडिंग है उसको भी इजी कर देता है। ठीक है, द बाइंडिंग एंड असेंबली ऑफ अदर ट्रांसक्रिप्शन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये दो चीजें हैं इसमें। So now it is clear that the core promoter is required for initiation of transcription. तो core promoter जो है वो उसका एक ही फंक्शन होता है core promoter का for initiation of transcription, क्योंकि जो जनरल core promoter पे ही जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और RNA polymerase 2 आगे बाइंड करते हैं और कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन असेंबली तैयार होती है और इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो लेकिन इतना काफी नहीं होता, केवल कोर प्रमोटर पे सारी असेंबली तैयार होने से ही इनिशिएशन हो जाए ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट एनफ, कुछ और भी सीक्वेंसेस होती हैं which are required for initiation of transcription and these sequences are called enhancers. ठीक है, enhancers जो हैं these are elements which are also required for initiation of transcription and enhancers are sequences only, जैसे core promoter sequence है वैसे enhancers are sequences on the DNA molecule and these sequences they determine whether the promoter is expressed and if it is expressed whether it is expressed in all cell types or is cell type specific. तो enhancers का काम होता है ये determine करना, determine मतलब निर्धारित करना, enhancers का काम होता है कि निर्धारित करना कि जो promoter है वो एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, और ये जो एनहांसर सीक्वेंसेस होती हैं ये रेगुलेटेड भी होती हैं। ठीक है, तो कौन सा जीन एक्सप्रेस होना है नहीं होना है, इट इज रेगुलेटेड वाया एनहांसर सीक्वेंसेस। ठीक है, दूसरी चीज है और इसी वजह से क्योंकि ये डिटरमिन करते हैं कि प्रमोटर एक्सप्रेस हो रहा है, दे हैव अ रोल इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, and also these are often targets for tissue specific or temporal regulation. तो enhancer sequences पे regulation भी होती है, so they are targets for tissue specific or temporal regulation. अब देखते हैं कि enhancer sequences कहाँ present होती हैं DNA में। Location of enhancer sequences. तो enhancer sequences जो हैं they are not, they do not necessarily present near the transcription start site. तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के आसपास प्रेजेंट हुए कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है पर ये कोई जरूरी नहीं है। रादर दे कैन बी लोकेटेड फार अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट साइट। तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे बहुत कई बेस पेयर्स पहले भी हो सकती है, अपस्ट्रीम भी हो सकती है, डाउनस्ट्रीम भी हो सकती है, विद इन द जीन भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, so they can be present within the gene or beyond the gene. ठीक है, also the orientation relative to the gene doesn't matter. ठीक है, उनकी orientation कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको और समझने के लिए let's have a look on the diagram. तो आप देख सकते हैं फिगर, इसमें एनहांसर सीक्वेंसेस जो है वो प्रमोटर सीक्वेंस से बहुत दूर भी हो सकती हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एनहांसर्स फ्रॉम कोर प्रमोटर में भी thousands base pair to kilo base pair, तो 100 base pairs to kilo base pairs, तो ये 100 base pair दूर भी हो सकती है और कई किलो बेसेस दूर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और ये सीक्वेंसेस यहाँ तो अपस्ट्रीम दिखाया हुआ है लेकिन ये जो सीक्वेंसेस है ये डाउनस्ट्रीम भी हो सकती हैं। ठीक है, कई बार विद इन द जीन भी होती हैं। एनहांसर्स के अलावा सीक्वेंसेस होते हैं साइलेंसर्स। जैसे एनहांसर्स होते हैं वैसे साइलेंसर सीक्वेंसेस होते हैं। साइलेंसर्स का क्या काम है, सप्रेस जीन्स एक्सप्रेशन एंड साइलेंसर्स जो होते हैं दे बाइंड टू द नेगेटिव रेगुलेटर्स। साइलेंसर सीक्वेंसेस का काम होता है जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस करना एंड दस दे बाइंड
नेगेटिव रेगुलेटर्स। वहीं पे जो एनहांसर्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो एनहांसर्स होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन को एनहांस करते हैं, ठीक है। सो दे बाइंड टू द पॉजिटिव रेगुलेटर्स, तो पॉजिटिव रेगुलेटर आएंगे, ठीक है, वो आके एनहांसर सीक्वेंसेस को बाइंड करेंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे। फिर एनहांसर सीक्वेंसेस क्या करेंगे, वो जीन एक्सप्रेशन को एनहांस करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एनहांसर्स फंक्शन, क्योंकि जो एनहांसर सीक्वेंसेस होती हैं वो कई थाउजेंड्स किलो बेस पे दूर भी होती हैं प्रोमोटर रीजन से, तो कैसे एनहांसर सीक्वेंस, जो एनहांसर्स हैं वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कैरी आउट करते हैं इतनी दूर रहकर भी। So let's have a watch on that. So as you can see in this figure shows complete transcription initiation by RNA polymerase 2 in a eukaryotic cell. आप देख सकते हैं ये DNA सीक्वेंस है, यहाँ पे एनहांसर एलिमेंट है, ठीक है। देन दिस इज अ कोर प्रमोटर एंड दिस रेड कलर इज द जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड, और ये जो एरो दिखाया है दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द जीन, ठीक है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में जीन का। तो यहाँ पे सिर्फ एक एनहांसर और एक एक्टिवेटर प्रोटीन दिखाया हुआ है, जबकि देयर मेनी देयर कुड बी मेनी एनहांसर सीक्वेंसेस और मेनी एक्टिवेटर प्रोटीन्स, ठीक है। कई सारे एक्टिवेटर प्रोटीन्स हो सकते हैं और दे कैन बी फ्यू एनहांसर सीक्वेंसेस जहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टिश्यू है, उसको कोई स्पेसिफिक जीन है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन आएंगे। एक्टिवेटर प्रोटीन आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि आके एनहांसर सीक्वेंसेस पे बाइंड करेंगे और एक्टिवेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, ठीक है, इसके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो अब ये एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड तो करेंगे, लेकिन क्योंकि जीन काफी दूर है, ठीक है, तो ये कैसे, तो ये कम्युनिकेट करेंगे विद द कोर प्रमोटर वाया यू कैन सी द लार्ज मीडिएटर प्रोटीन, ठीक है। ये मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर जो होते हैं लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन एनहांसर्स एंड द कोर प्रमोटर, ठीक है। एनहांसर और कोर प्रमोटर के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन जो है बाइंड कर रहा है मीडिएटर को, और देन द मीडिएटर जो है वो कवर कर रहा है पूरे ट्रांसक्रिप्शन असेंबली को, इनिशिएशन असेंबली को, ठीक है। तो एक्टिवेटर प्रोटीन जो होते हैं इनका काम होता है टू दे हैव अ रोल इन assembly of general transcription factors on the core promoter, एक फंक्शन होता है ये। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है एक्टिवेटर प्रोटीन्स का, वो होता है दे ऑल्सो अट्रैक्ट द क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, इनको भी अट्रैक्ट करते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स और हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, ताकि ये बेसिकली ये क्लियर कर रहे हैं क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है उनको लूजन अप कर रहे हैं और डीएनए को एक्सपोज करें, सो दैट द जनरल ट्रांसक्रिप्शन असेंबली कैन बी फॉर्म्ड हियर, ठीक है। तो जनरली तो क्या होता है कि जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये जो असेंबली है, ये एरिया को पूरा ये एक्सपोज करते हैं इतने डीएनए को, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता है डीएनए स्ट्रैंड पे, तो आगे का जो आरएनए पॉलीमरेज के आगे का जो जीन होता है या डीएनए होता है उसको ये क्लियर करते चले जाते हैं, ठीक है। और जो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसे वो फिर से रैप करते चले जाते हैं, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म होता है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। जो आगे का हिस्सा होगा उसको ये खोलेंगे, क्लियर करेंगे, डीएनए को एक्सपोज करेंगे, ठीक है, उसको लूजन अप करेंगे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को, और जो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसको फिर से
बाइंड करते चले जाते हैं, फिर दोबारा से रैप करते चले जाते हैं। ठीक है, और ये इसलिए होता है ताकि जो डीएनए है वो बिना किसी मतलब के एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर डीएनए बिना मतलब के एक्सपोज होगा तो उसको खतरा होगा डीएनए से। सेल्स में डीएनए होता है, ठीक है, तो डीएनए 1 से खतरा होता है। ठीक है, डीएनए 1 आके अगर उसको ऐसे कोई डीएनए मिल जाएगा ऐसे अनप्रोटेक्टेड, ऐसे एक्सपोज, तो आके क्लीव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड डीएनए होता है उतने को ही एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दिस द ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर।